Hello, my dear friends. Today we have to discuss the chemical properties of group number 17, or we can say the chemical periodicity of group number 17. See, the question is very lengthy, so the complete question never asked in exam. But as you know very well, chemical properties of group or chemical periodicity of group is nothing but the reaction of elements with hydrogen, reaction of elements with oxygen, reaction of elements with halogen, with acid, with other metals, etc. we are discussing in chemical properties. So here the chemical properties is a lengthy question, complete question not asked but the fragments of questions asked in exam. So my friend, first of all you have to make heading in your fair note that chemical properties of group number 17. Chemical properties of group number 17, and then write different question. We will write question like write a note on hydrogen halide. Okay, write a note on hydrogen halide means the reaction of halogen with hydrogen. So let us discuss the first chemical property in a question form. Write a note on hydrogen halide. So it is clear here the hydrogen reaction with halogen means all elements react with hydrogen and they form hydrogen halide. They form HF, hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide. Remember one thing, competitive point, these are not acid. These are not acid, remember. Periodicity is the tendency to react. Here written the affinity. Affinity for hydrogen means the tendency to reaction with hydrogen is decreases from fluorine to iodine. Means down the group, tendency to reaction with hydrogen is decreases. Okay. Another important thing is hydrogen halide when dissolved in water they called hydrohalic acid. Means the aqueous solution of HF is a hydrofluoric acid. This one is acid, but HF not in a solution, this one is not acid. Remember. Similar way, hydrochloride in aqueous solution is acid, but HCl is not acid. So I repeat again, hydrogen halide dissolve in water, they form hydrohalic acid. Means HF aqueous solution hydrofluoric acid, HCl aqueous solution hydrochloric acid, HBr aqueous solution hydrobromic acid, HI aqueous solution is the hydroiodic acid. Okay. See in a table, the values of table you don't have to prepare. Melting point given. Melting point you know is not a regular trend, is 190. Why this melting point is highest here, boiling point is highest here? Think yourself. Because in hydrogen fluoride, due to the polarity of HF bond, strong H bond is present. Strong H bond is present, and due to presence of a strong H bond in HF, melting point and boiling point is high. Okay. Now bond length, down the group bond length increases. It is depend upon you. Generally order asked, bond length order may be asked. Okay. फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि this table is not important. Values are not important. The use of values important. आपको बोले कि bond length, down the group bond length increases. अगर आपको ये बोले कि
वाई एच एफ ऐसा हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि सभी में, हालांकि यहाँ पे highest boiling point of HI, this is due to the high molecular mass, but comparatively यहाँ पे molecular mass हाई है, यहाँ पे भी हाई है, तो with respect to HCl and in HBr, why HF is highest? ड्यू टू द, एक ही आंसर है, रीजन एक ही है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप बोलेंगे कि एच आई हाइएस्ट क्यों है, तो ये तो मोलेकुलर मास की वजह से, क्योंकि फ्लोरीन का मोलेकुलर मास और एच आई का मोलेकुलर मास बहुत डिफरेंस है, तो ये ऐसे ही डेंसिटी की वजह से ज़्यादा है। लेकिन कंपैरिजन इन तीनों में देखो तो ये सबसे ज़्यादा इसलिए है कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। बॉइलिंग पॉइंट में भी आप देखें तो ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ से भी हाईएस्ट, तो यहाँ तो एक ही फर्म रीजन है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन। बॉन्ड लेंथ का रेगुलर ट्रेंड है डाउन द ग्रुप, द बॉन्ड लेंथ ऑफ एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई। ठीक है, बॉन्ड लेंथ आप देखें तो ये है एच एफ, बाद में आता है एच सी एल, बाद में आता है एच बी आर, बाद में आता है एच आई। डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो ये भी रेगुलर ट्रेंड है डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, तो ये हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल नहीं है, बट ड्यू टू द लॉन्ग बॉन्ड ऑफ एच आई ये हाइड्रोजन इजीली, क्योंकि इसको तोड़ना मुश्किल है, ये इजीली टूट जाता है। ठीक है, छोटी लकड़ी हो तो हम नहीं तोड़ सकते, बड़ी लकड़ी हो तो हम इजीली तोड़ सकते हैं, सेम डायामीटर की। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा, इसकी सबसे कम। तो ये हाइड्रोजन इन वाटर, इन हाइड्रोआयोडिक hydrogen iodide, this hydrogen is easily available, so most acidic, most acidic। तो आप इस हिसाब से ऑर्डर देखो तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाती है। आप ऐसे भी ऑर्डर लिख सकते हो, एच एफ इज लेस एसिडिक देन एच सी एल, लेस एसिडिक देन द एच बी आर, लेस एसिडिक देन एच आई। ये ऑर्डर भी आप लिख सकते हो, सही है ना। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो ये पीके वैल्यू देख लो, हाईएस्ट पीके वैल्यू इज दिस वन। ठीक है, हाईएस्ट पीके वैल्यू लेस एसिडिक, लीस्ट पीके वैल्यू मोर एसिडिक, बिकॉज एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू। और इक्विलिब्रियम में हमने ये पढ़ा था कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हो कि डाउन द ग्रुप पीके वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो दो ऑर्डर बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज है। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब जिसका बॉन्ड स्ट्रोंग होगा वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा वो थर्मली कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आप बॉन्ड लेंथ वाला कंसेप्ट देख लीजिए, ये बॉन्ड लेंथ 91, ये कम ज़्यादा, इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये थर्मली अनस्टेबल है, थर्मली हाईली स्टेबल है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिए, मैंने जो था उसमें कंसेप्ट वो समझाने की पूरी आपको कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे फ़ोन करके पूछ ले, 2-3 बार पढ़िए और बाद में अपनी बुक में लिख लीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन के ऊपर ऐसे रखता हूँ, आप पोज करके ये पूरा क्वेश्चन 1, 2, 3 मेन पॉइंट है, ठीक है, लिख लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है,
अगर आप पूछे कि इसमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट क्या है, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट एक है कि ये जो है ना हाइड्रोजन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। ठीक है। दूसरा एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि HF, HCl, HBr, HI एसिड नहीं है, उसका एक्वियस सॉल्यूशन जो है वो एसिड है। वाटर टू फ्रॉम हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।